Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 11, that is the human eye and the colorful world. Students, in our previous session we discussed regarding the structure of human eye, its accommodation power, and then various defects of human eye and then their corrections. Today let us start to discuss with some other topics of this chapter. Okay? Our today's first topic is refraction of light through a glass prism. Students, consider a triangular glass prism. You can see in the figure, okay, we are taking a triangular glass prism. It has two triangular bases and three triangular lateral surfaces. दो ट्राइंगुलर बेस होंगे और तीन साइड्स होंगे ट्राइंगुलर शेप में. These surfaces are inclined to each other. Okay, the angle between two lateral faces is called the angle of prism. दो साइड के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू डिस्कस activity 11.1 of your NCERT textbook given on page number 192. For that activity we are going to refer to figure 11.4 of your textbook. Okay, so let us discuss that activity. Here, as you can see, the base of a triangular prism is of triangular shape, triangle ABC. The ray PE, can you see ray PE? It is the incident ray falling on the surface AB of this prism, triangular prism. AB के ऊपर PQ ray जो है incident हुआ. After getting incident, it gets refracted. And can you see the refracted ray? EF. EF is the refracted ray. Now this ray EF falls on the surface AC of the triangle. AC के ऊपर ये refracted ray EF गिरा, and once again the refraction takes place, and after refraction the ray which comes out is ray FS. Can you see the ray RS जो है FRS? Okay, that is the final ray which is coming out, and that is called emergent ray. So we have PQ as incident ray, EF is the refracted ray, and RS is the final emergent ray. Students, here you have to see the angles. Can you see angle I? Okay, it is the angle of incidence. Okay, angle I, जहाँ पे इंसिडेंट रे है ना वहाँ पर देखो नॉर्मल से जो एंगल बना हुआ है. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. नॉर्मल का नाम क्या रखा है? एन एन डैश, दैट इज द नॉर्मल. उनके बीच में एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Okay, then comes angle R. Can you see angle R? Okay, that is angle of refraction. It is between what? EF, that is the refracted ray, and the normal n dash, that is angle of refraction. And can you see angle E, which is the final angle? Okay, that is called angle of emergence. That is called what? Angle of emergence. Okay, here the angle A of triangle ABC is called angle of prism. ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. बट वन मोर थिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इज दैट कि एक्चुअली ये जो रे पी क्यू है, ओके, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो रे पी क्यू जो है ऐसे स्ट्रेट चला जाता वो जी एच के तरफ. ओके, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं जाके वो रिफ्रैक्ट हुआ. ओके, ई एफ हो गया, और ई एफ से भी उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, वो ई एफ से स्ट्रेट नहीं जाके आर एस की तरफ गया. ओके, अब ये आर एस को देखो हम लोग पीछे से डॉटेड लाइन से जोड़ रहे हैं, तो ये जो पी क्यू वाला रे जो एकदम ऊपर तक गया जी एच तक, और ये आर एस वाला जो रे है जो पीछे से आया डॉटेड लाइन से, वहाँ पे एक एंगल जी के इधर बनाया गया है, एंगल डी, जी पॉइंट पे. ओके, दैट एंगल डी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिविएशन? एक्चुअली द पेक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल. ओके, ये जो प्रिज्म का जो पेक्यूलर शेप है वो एमरजेंट रे को बेंड कर देता है. कैन यू सी द आर एस इज द एमरजेंट रे एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. तो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट एंगल डी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन. Okay students, so this is the activity 11.1. You have to remember what do you mean by incident ray, refracted ray, emergent ray. Okay, then angle I is angle of incidence, angle R is angle of refraction,
angle E is angle of emergence, and the angle between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation. Okay. Now our another topic is dispersion of white light by a glass prism. Okay student, whenever a beam of white light, जो sunlight आता है, it is a beam of white light, it falls on the glass prism, it splits into 7 colors. Okay, it is a spectrum, a band of 7 colors. Okay, this phenomenon of splitting of white light into 7 colors is called dispersion of white light. Understood? Splitting of white light into 7 colors into a band of colors called spectrum. That splitting of white light is called dispersion of light. This spectrum of white light has 7 colors. Which are those 7 colors? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay, in the sequence we can say it as, in the short form it's known as VIBGYOR. Okay, the red light bends the least. Now if you see the bending out of the 7 color, the color which is bending the highest, the most bending color is violet, and the least bending color is the red. Okay, in the sequence we get violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this is the dispersion of white light by a glass prism. Now students, let us discuss one another activity. You can see figure 11.6 in your textbook. Okay, actually Isaac Newton was the first scientist to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. ये जो डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट हमने जो देखा 7 कलर्स में, इसको सबसे पहली बार साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने ही बताया था. ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट further by using another similar prisms. However, he could not get any more colors. Triangular prism से उसको perfect जो है 7 colors मिल रहा था. Then he thought of another thing. Okay, what he did कि पहले उसने एक straight prism रखा सीधा, और उसी के बाजू में एक inverted prism रखा सेम साइज का. ओके, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म्स लिए. ओके, उसमें से एक जो है उन्होंने स्ट्रेट रखा और दूसरा जो है उसको इन्वर्टेड कर दिया. ओके, पोजीशन में. एंड देन ही पास द वाइट लाइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म. Okay, when the white light passed from the first prism, due to the process of dispersion, it split it into what? 7 colors. Violet से लेके red तक 7 colors आ गए. Now these 7 colors when passes from one prism to the inverted prism, okay, so after refraction twice, when it leaves the second prism, it again combines into white light. So it is called recombination of the spectrum of white light, produces again white light. अंडरस्टूड. पहले एक स्पेक्ट्रम से वाइट लाइट से हमने 7 कलर्स बनाए, वो 7 कलर्स दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म पर जाते हैं. जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर से वो क्या आ जाता है? वाइट लाइट आ जाता है. ओके, इट रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस द वाइट लाइट. ओके स्टूडेंट्स, now students, let us discuss about another important phenomena, that is formation of rainbow. Okay, how is a rainbow formed during a rainy season? Students, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Okay, it is caused by the dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. Students, rainbow के लिए सबसे important चीज़ क्या है कि बारिश का मौसम भी होना चाहिए और साथ साथ में सन भी होना चाहिए. ओके, कभी कभी क्या होता है कि बारिश के कारण एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉप्स रह जाते हैं, है ना. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, एंड व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दिस वाटर ड्रॉपलेट्स, these water droplets disperse that white light into 7 colors, and due to that only it forms a rainbow. But what are the actual phenomena occurring in that water droplet? Can you see a raindrop in this figure? Okay, let us discuss the phenomena which is going to take place. Okay, actually students, the water droplets acts like small prisms. ये छोटे छोटे prisms की तरह काम करते हैं. First of all, when the white light falls on that water droplet, the dispersion of the white light takes place. Okay, dispersion means what? It splits into 7 colors. Okay, refraction as well as dispersion. Okay, when the white light falls on the raindrop, ये yellow color का आपको जो दिख रहा है ना, that is the sunlight falling on the raindrop. ये white light actually है. Okay, so here the two phenomena takes place, refraction and dispersion. Okay, and due to the dispersion it splits into 7 colors. हमको खाली 2 ही कलर दिख रहे, रेड और वायलेट. एक्चुअली बीच के सारे कलर्स भी हैं इसमें. ओके, now what happens when this 7 colors falls on the
अनदर सरफेस ऑफ दिस रेन ड्रॉप, है ना, यू कैन सी कि वो रेन ड्रॉप के ऊपर ही सरफेस, तो वहीं से वो वापस से इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन. अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गया. एंड वंस आफ्टर इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन दे फॉल ऑन अनदर सरफेस, और एक बार सरफेस पे आता है, ओके, ड्यू टू रिफ्रैक्शन दे कम आउट, है ना, विद द 7 कलर्स एंड द ऑब्जर्वर कैन सी द 7 कलर्स ऑफ दिस रेनबो. तो एक्चुअली 3 फिनोमेना होते हैं. पहले डिस्पर्जन, है ना, इनटू 7 कलर्स, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन लास्ट रिफ्रैक्शन. ड्यू टू दिस 3 फिनोमिना द रेनबो कैन बी सीन. ऐसे एक वाटर ड्रॉपलेट से 7 कलर होते हैं, ऐसे न्यूमरस वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर. ओके, सो वी कैन सी अ ह्यूज रेनबो ऑल्सो. ओके, समटाइम्स स्टूडेंट्स हमको एक रेनबो के ऊपर दूसरा रेनबो भी दिखता है. दैट सेकेंड रेनबो इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो. व्हाट इज इट कॉल्ड? सेकेंडरी रेनबो. और उसका जो कलर्स का सीक्वेंस होगा ना, फर्स्ट रेनबो से उल्टा होगा. अगर फर्स्ट रेनबो में वायलेट से लेके रेड तक है, तो सेकेंड रेनबो में क्या होगा? रेड से लेके वायलेट तक होगा. कलर्स का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. Okay, and once again let me tell you that you can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. बड़े बड़े जो वाटरफॉल्स होते हैं ना, क्योंकि वहाँ से जब पानी नीचे गिरता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़े एयर में रह जाते हैं, और उसके ऊपर अगर सनलाइट अगर जाता है तो वहाँ पे भी हम रेनबो देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, you can see students, this is the perfect figure showing the formation of a rainbow. white light जब आया तो 7 कलर्स में डिस्पर्जन हुआ, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एंड देन फाइनली रिफ्रैक्शन से 7 कलर्स बाहर आए. सो दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. ऐसे एक वाटर ड्रॉप होता है, ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स होते हैं, जिससे एक बड़ा सा रेनबो हमको दिखता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Actually, what is atmospheric refraction? Sometimes, okay, the sunlight which comes, okay, it travels through the Earth's atmosphere. Now, the Earth's atmosphere at the higher altitudes it is lighter, and at the lower altitudes it is denser. ओके, अर्थ के अंदर जो गैसेस है उसके सरफेस पे वो ऊंचे ऊंचे हाइट्स पे कम है, और नीचे नीचे आते आते एयर का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और वो ठंडा रहता है एयर नीचे. ओके, तो ड्यू टू दिस चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो चेंजेस, ड्यू टू विच वी कैन सी सम ऑब्जेक्ट्स एज वेवरिंग और फ्लिकरिंग. एंड ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, या फिर कुछ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. Okay, in the atmosphere, that is called atmospheric refraction. What is that called? Atmospheric refraction. And we are going to discuss few phenomena which occur due to the atmospheric refraction. And the first phenomena is twinkling of stars. Okay, students, in right from KG section we have studied a poem, Twinkle Twinkle Little Star. Okay, we all think that the stars twinkle, मतलब लाइट बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, ट्विंकल करते हैं. ओके, तो एक्चुअली स्टार्स नेवर ट्विंकल, कभी उसका लाइट बंद चालू नहीं होता है. दे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस वाइट लाइट. ओके, देन व्हाई दे डू अपीयर टू बी ट्विंकलिंग? ओके, इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Okay, what happens when the light comes out from a star? You can see in the figure students, जब light जो एक star में से आ रहा है, when it reaches to the Earth's atmosphere, okay, due to the changing density of the gases, okay, the light, you can see the light bends again and again due to the refraction. अर्थ के एटमॉस्फेयर में बार बार रिफ्रैक्शन के कारण लाइट देखो बार बार बेंड हो रहा है, एंड देन इट रीचेस टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई. ओके, तो इतनी बार वो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो हमको कैसे लगता है कि वो स्टार जो है उधर नहीं है, कोई और पोजीशन पे है. ओके, लेट मी शो यू वन अनदर फिगर. ओके स्टूडेंट्स, see this figure. Here you can see that there is a star. Actually it is coming through a straight path. Okay, but due to the refraction, okay, increasing refractive index in the Earth's atmosphere, okay, it bends again and again and reaches to the observer's eye. लेकिन ऑब्जर्वर उसको कैसे देखेगा? जो डॉटेड लाइन जो स्ट्रेट जा रही है ना, वहाँ पर देखेगा अपरेंट स्टार पोजीशन. ओके, एक्चुअली स्टार ऊपर था लेकिन ऑब्जर्वर उसको नीचे देख रहा है. अपरेंट मतलब फॉल्स पोजीशन है वो, क्योंकि एंड दिस पोजीशन इज सीन व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार. अब ये अपरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं है, बार बार चेंज होता रहता है, कभी इधर होगा, कभी नीचे होगा, कभी थोड़ा ऊपर होगा. क्यों? क्योंकि बार बार अर्थ का जो गैसेस है वो मूव करते रहते हैं, जिसके कारण लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता रहता है. सो दिस अपरेंट पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड वी द
it fluctuates, the position fluctuates, and we see the amount of sunlight, no, or the starlight entering the eye flickers means changes. The star sometimes becomes brighter and at sometimes it becomes fainter मतलब धुंधला, कभी हमको ज़्यादा चमकता दिखता है, कभी धुंधला दिखता है, and that's why we feel that the star is twinkling, this star's twinkling. अंडरस्टूड? तो दिस इज़ द रीज़न कि स्टार्स हमको क्यों ट्विंकलिंग, स्टार एक ही पोजीशन पे होता है, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, बट उसमें से जो लाइट आ रही है उसका कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के कारण हमको उसका पोजीशन बार बार चेंज करता हुआ लगता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. देन वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? यहाँ पे भी एक गिव रीज़न है वाई द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल. द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ. Stars are very very far from the earth, but planets are much closer to the earth and are thus seen as extended sources, है ना. स्टार्स आर सीन एज पॉइंट सोर्सेस, एकदम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, लेकिन प्लैनेट्स को हम थोड़ा सा बड़ा सोर्स मान सकते हैं. इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point side sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि प्लैनेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट साइड सोर्सेस है, प्लैनेट थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो उसमें से बहुत सारी लाइट निकलती है, तो जब उसका रिफ्रैक्शन होता है ना, तो हमको इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं दिखता है, चेंजिंग इफेक्ट नहीं आता है, एंड हेंस द प्लैनेट्स डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल. Okay students, so here you have to learn the answer why the stars appear to twinkle and why planets don't appear to twinkle. Okay students, we are discussing regarding the atmospheric refraction, various phenomena caused due to atmospheric refraction. एक तो हमने देख लिया twinkling of stars, अब दूसरा भी हम देखते हैं advanced sunrise and delayed sunset. Actually students, the sun is visible to us about 2 minutes before sunrise and about 2 minutes after sunset due to atmospheric refraction. Yes, actually sunrise का जो टाइम होता है ना, उससे 2 मिनट पहले ही हमको सन दिख जाता है, और सनसेट का जो भी एक्चुअल टाइम है उससे 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखाई देता है. एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसमें होता क्या है, देखो इधर स्टूडेंट, यू कैन सी द अर्थ एंड यू कैन सी द हॉरिजॉन. हॉरिजॉन मतलब वो लाइन है, उसके ऊपर सनराइज होता है, उसके नीचे क्या होता है, सनसेट होता है. सनराइज सनसेट, तो हम सनराइज़ की तरफ देखते हैं, राइट साइड सनराइज. तो व्हाट हैपन्स कि जब एक्चुअली सन अभी नीचे ही है, देखो रियल पोजीशन कहाँ पे, नीचे है. यू कैन सी दैट द रियल पोजीशन ऑफ सन इज बियॉन्ड द हॉरिजॉन. लेकिन जब वो लाइट सीधा जा रहा है अर्थ के पास, तो ड्यू टू द कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ दैट लाइट इट फॉल्स ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड द ऑब्जर्वर सीज द सन टू बी अबव द हॉरिजॉन. सन अभी हॉरिजॉन के नीचे ही है, 2 मिनट बाकी है उसको आने में, लेकिन जब वो लाइट ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों पे गिरता है, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि सन ऊपर है करके, और उसको सनराइज दिख जाता है 2 मिनट पहले ही. सो दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सिमिलरली नाउ द सन हैज़ एक्चुअली सेट. इसमें देखो सनसेट हो गया, नीचे रियल पोजीशन सन नीचे आ गया, 2 मिनट हो गए, बट देन ऑल्सो ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन द ऑब्जर्वर्स आई, ही कैन सी द सन अबव द हॉरिजॉन. तो दो सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी उसको सन दिखाई दे रहा है. तो इन शॉर्ट हमको 4 मिनट ज़्यादा सन दिखाई देता है, 2 मिनट पहले सनराइज़ के और 2 मिनट बाद सनसेट के. एंड द apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to atmospheric refraction. ये जो पूरा जो हम बता रहे हैं, ये जो सनराइज से पहले दिखना और सनसेट से बाद में दिखना, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस another important topic, that is scattering of light. Scattering of light का मतलब क्या? The interplay of light with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature. Like what? The blue color of the sky, the color of water in deep sea, the reddening of the sun at the sunrise and sunset. These are all wonderful phenomena. Now we have discussed that the scattering of light by colloidal particles. Actually students, in 9th standard you have studied that a colloidal particle scatters the white light. We can see the path of beam of light passing through a colloidal particles. अगर वो ट्रू सोल्यूशन होगा ना, तो उसमें से हम लोग है ना लाइट का पाथ नहीं देख सकते. 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा हुआ है. यू कैन सी दैट इफ इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन यू कैन नॉट सी द पाथ ऑफ द लाइट, बट इफ इट इज़ अ colloidal solution we can see the path of the light.
एक्चुअली क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल. ओके, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? टिंडल इफेक्ट. Okay, the Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स. व्हेन ए बीम of light strikes with such fine particles, the path of beam becomes visible. ओके, जब वाइट लाइट जब इन पार्टिकल्स से टकराता है तो वाइट लाइट स्कैटर होके, ड्यू टू दैट स्कैटरिंग वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट. ओके, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, एकदम पूरे बंद कमरे में आप देख सकते हो कि खिड़की के एक छोटे से होल में से आप देख सकते हैं, आप वाइट लाइट आपको दिख रही होगी, है ना. एंड दैट इज़ व्हाट, उसमें आप देखना बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे उस पतले से वाइट लाइट के अंदर. ओके, दैट इज टिंडल इफेक्ट. Okay, the scattering of light makes the particles visible. Okay, now this Tyndall effect can be seen, okay, when sunlight passes through a canopy of a dense forest. स्टूडेंट आप लोग थर्ड फिगर देख सकते हो कि डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल में जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेड़ों के अंदर बहुत सारे मतलब टाइनी एयर के अंदर है ना बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और उस वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण लाइट स्कैटर होता है. तो इस तरह से हमको देखो पूरा पाथ ऑफ बीम दिखता है लाइट का, एंड है ना. तो दिस इज ऑल्सो टिंडल इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. कभी कभी स्कैटर्ड लाइट हमको ब्लू लाइट कलर का दिखता है, कब, जब यानी थोड़े से बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट. ओके, जब बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर ब्लू लाइट, बट द लार्जर पार्टिकल्स जो स्कैटर करते हैं वो अलग अलग कलर्स के भी देते हैं, और बहुत ज़्यादा लार्ज का होगा तो वो वाइट लाइट दिखाई देगा सीधा. ओके, नाउ आवर अनदर टॉपिक इज why is the color of clear sky blue. है ना, जब स्काई एकदम क्लियर होता है तो हमको ब्लू कलर क्यों दिखता है? एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. हमारी जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है ना, उससे भी कम वेवलेंथ वाले फाइन पार्टिकल्स जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue end than the light of longer wavelengths at the red end. अब ये इतने फाइन पार्टिकल्स है कि वो ब्लू लेंथ वाले जो लाइट होते हैं ना उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, उसको ईजिली वो क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं. वो रेड लाइट वाले वेवलेंथ, वो क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड लाइट की, उनको स्कैटर नहीं कर पाते हैं. सो व्हेन द वाइट लाइट फॉल्स ऑन दिस पार्टिकल्स, एयर के अंदर जब फाइन पार्टिकल्स है, जब वाइट लाइट इनके ऊपर गिरता है तो वो ब्लू कलर के लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, और वो ब्लू कलर के लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं और हमारे आँखों पे वो ब्लू कलर आता है. इसी के लिए हमको स्काई जो है ब्लू कलर दिखता है ना. एयर के अंदर इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं है जो रेड कलर को स्कैटर कर सके, इसी के लिए हमको स्काई जो है रेड कलर नहीं दिखता है, दिन में हमको ब्लू कलर का दिखता है. अंडरस्टूड, बिकॉज द ब्लू कलर लाइट इज ईजिली स्कैटर्ड बाय द फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सपोज इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो क्या होता, ये जो लाइट सीधा गिरता उसको स्कैटर करने के लिए कोई पार्टिकल ही नहीं होते, तो हमको स्काई कैसे दिखता, डार्क दिखता. द स्काई अपीयर्स डार्क एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स. व्हेन वी गो अप, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर जाओगे तो स्काई आपको ब्लैक दिखेगा. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर चला गया तो वो लाइट को स्कैटर करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो पूरा स्पेस वैक्यूम है. Understood? So why the color of the sky is blue? Is it clear to you now? Because of the dispersion of the blue light by the fine particles present in the atmosphere. Okay? Till now students, we have discussed that the color of the clear sky is blue. But now let us discuss why the color of the sky at the sunrise and sunset is reddish. है ना, जब देखते हो कि जब सनराइज़ या सनसेट होता है एकदम सुबह सुबह या फिर एकदम शाम को, तो स्काई थोड़ा सा रेड कलर का आ जाता है. ओके, उसका क्या रीज़न है? एट द सनराइज एंड द सनसेट द सन इज़ नियर द हॉरिजॉन. सन जो होता है वो एकदम हॉरिजॉन, जो लाइन है ना हमारा, ओके, उस हॉरिजॉन की, यू कैन सी द सन इज़ नियर द हॉरिजॉन इन द फिगर. ओके, एंड द लाइट फ्रॉम द सन travels through the thicker layers of the atmosphere.
ये जब एकदम सनराइज या सनसेट के टाइम पे सन जो हॉरिजॉन पे होता है, ऊपर नहीं होता है, ओवरहेड नहीं, इट इज़ नियर द हॉरिजॉन। येलो वाला नहीं, हम रेड वाला देख रहे हैं हम लोग। ओके ओके, इट इज़ नियर द हॉरिजॉन। तो ये जो लाइट आ रही है अभी सन में से, इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू द थिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, अब हॉरिजॉन के एकदम स्टार्टिंग में ही जो फाइन पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं और वो ब्लू लाइट वहाँ से चला जाता है। बट द रेड लाइट एंड द लॉन्गर वेवलेंथ्स रीचेस अवर आइज़, क्योंकि ब्लू लाइट तो स्कैटर होकर उधर से उधर चला गया और रेड लाइट जो है अंदर तक आती है। ओके, क्योंकि उसको स्मॉल पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाते हैं तो रेड लाइट अंदर तक आ जाती है एंड ड्यू टू दैट द रेड लाइट रीचेस टू द आइज़ ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनसेट एंड सनराइज। ओके, ब्लू कलर का लाइट पहले ही एटमॉस्फेयर के स्टार्टिंग में ही एट द ओरिजिन हॉरिजॉन पे ही वो क्या होता है, वो स्कैटर हो जाता है। ओके, अवे बाय द फाइन पार्टिकल्स, और ये रेड लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी के लिए सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे हमको सन जो है रेड कलर का दिखता है, बाकी टाइम पे क्या होता है वो ब्लू कलर का हमको दिखता है, क्योंकि वो बाकी के टाइम पे सन जो हमारे हेड के ऊपर होता है। ओके, तो पूरा का पूरा वाइट लाइट जो है वो आता है तो पार्टिकल्स उसको स्कैटर करते हैं ब्लू कलर वाली लाइट को और हमारे आंखों पे उसको फेंकते हैं एंड वी कैन सी द स्काई एज ब्लू कलर ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके स्टूडेंट्स, so students, by this we end our chapter. Students, I have completed this chapter in 2 videos, but each video is of nearly half an hour. ओके, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दोनों वीडियोस में कवर किए हैं एंड हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सो गो थ्रू द वीडियो, रीड योर NCERT बुक, इवन इफ यू हैव सम अदर रेफरेंस बुक्स यू कैन go through them also. Okay, and then prepare the question answers and objectives of this chapter. Okay students, meet you in the next session with new chapter. Till then, thank you.